ठीक है, रोशन जरा पढ़िए। मल्टी वेयरहाउस सिस्टम। Yes, sir. Multi-warehouse system. The section will look at the result of adding more distribution centers to the system. As might be expected, there is an effect of the cost of warehousing, material handling, inventories, packaging, and transportation. Our purpose will be to look at how all of these costs and the total system cost behave. We also want to know what happened to the service level as more distribution centers are added to the system. To make valid comparisons, we must freeze the sales volume. We can improve, we can then compare cost as we add distribution centers to the system. ठीक है, मल्टी वेयरहाउस में we are supposed to add few more levels so that proper distribution can be done. Okay, transportation cost now. अब इसमें कितना कितना वेरिएबल्स है that are supposed to be taken into consideration. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को पढ़िए। ये 1 मिनट है, वो पढ़ो तो वो माइक ऑन करके पढ़ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब if page number Transportation cost. In the section of transportation, we show that if shipment to consumers are in less than full vehicle lots, the total transportation cost is reduced by establishing a distribution center in the market area. This is because more weight can be shipped for greater distance by truck. Cost of carriage. To provide transportation service, any carrier, whatever mode, must be certain basic physical elements. These elements are ways, terminals, and vehicles. Each results in a cost to the carrier, and depending on the modes and carrier, may be either capital or fixed or operating vehicle variable cost. Fixed costs are the costs that do not change with the volume of goods carried. ठीक है, 1 मिनट बाबू। इसमें जो डिस्कशन जो शुरू हो रहा है हम लोग का, ठीक है, आई एम यूजिंग द वर्ड डिस्कशन, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। तो मल्टी वेयरहाउस सिस्टम का जो मतलब है, आई होप कि मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी अभी। यस सर, फाइन। आरुषि, तो मल्टी वेयरहाउस का सिस्टम इसलिए जरूरी है कि जैसे एक सेंटर वेयरहाउस का एक सेंट्रलाइज, आप लोग नोटबुक में लिखिए तो एक चीज कि वेयर हाउसिंग, इसमें लिखिए आप लोग, वेयर हाउसिंग शुड बी should be established with a combination of centralization and decentralization. Combination of centralization and decentralization both. Full stop. The radius of the market has increased. The radius of the market has increased. And the locations of the market, all the different locations of the market, इंक्रीज के बाद क्या बोले फिर से बोला रुचि सर? इंक्रीज के बाद क्या बोले? द रेशियो मार्केट हैज इंक्रीज्ड। रेडियस द रेडियस ऑफ द मार्केट हैज इंक्रीज्ड। हाँ, रेडियस मतलब पहले एक छोटे जगह में मार्केट होता था, अब मार्केट बहुत बढ़ गया है तो रेडियस बढ़ गया। ठीक है, एट द सेम टाइम द लोकेशंस ऑफ द मार्केट, ठीक है, हैज स्कैटर्ड अ लॉट, मतलब बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक ही जगह पे है, मतलब इधर भी छोटा छोटा बहुत सारा मार्केट हो गया जिसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो मार्केट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, विद अ ह्यूज पोटेंशियल।
full stop. With respect to the market, with respect to the market, with respect to the market, we are witnessing now, we are witnessing now, we are witnessing now that the collection of, you know, the number or the collection of POP, point of purchase, या retail outlets have consolidated, have consolidated. Sir, repeat that. कहां पे रिपीट करें? We have witnessed that the, The last क्या point. लिखा हम लोगों ने बलराम? We have witnessed that. Sir, माइक ऑन करके बोलो. we are witnessing now that the collection of POP or retail outlets have consolidated. Consolidated. ठीक है, फुल स्टॉप. अब इस बात को समझिए क्या है ये. कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट करना. फाइन. आपका पूरा जो ये जो लैपटॉप एसेसरीज है, सब सारा चीज, मोबाइल एंड ऑल, इसका मार्केट कहां पर है? कंसोलिडेटेड एक जगह, एसपी वर्मा रोड. सारा कंसोलिडेशन हो चुका है एसपी वर्मा रोड में. ठीक है. सेकंड पॉइंट ऑफ ऑल मोबाइल एसेसरीज हरिनिवास. ठीक है. अच्छा, बाकी छोटे छोटे और लोग भी हैं, लेकिन मेजर कंसोलिडेशन कहां पर हुआ है? हरिनिवास, दैट इज डाक बंगला रोड, एंड एसपी वर्मा रोड, दोनों सटा हुआ है. ठीक है. आपका फर्नीचर का कंसोलिडेशन कहां पर है? नाला रोड. नाला रोड. ओके फाइन. आपका दवा का कंसोलिडेशन कहां पर है? GM रोड. गोविंद मित्रा रोड, जीएम रोड. यस सर. तो अब समझिए कंसोलिडेशन क्या हो रहा है. मतलब मार्केट भी अब मैच्योर कर रहा है. टारगेट ऑडियंस का मैच्योरिटी की हमने बात की थी, ये तो उसका मैच्योरिटी क्या याद है आप लोगों को? क्या बात हमने बोला था? मतलब टारगेट ऑडियंस, ये लोग जब मैच्योर करते हैं तो मार्केट कंसोलिडेट करता है. इस पे याद आ रहा है कुछ? नहीं. तुम्हारा नाम क्या बोलिए? दीप नारायण मोबाइल यूज कर रहा है. ठीक है. अनदर नारायण, नमन, बलरामपुर पे, रागिनी, जानवी एंड ओके. मोबाइल इस्तेमाल करते करते आपकी मैच्योरिटी आएगी कि अब मोबाइल का मतलब इतना सारा फीचर एक जगह होना चाहिए, देन इट इज अ मोबाइल. मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इज नॉट अ मोबाइल. ठीक है. अब क्या है कि अब जो लोकल जो प्रोडक्ट्स था, माइक्रोमैक्स के अलावा है, उसको खरीदना बंद कर दिया आप लोगों ने. अब सिर्फ क्या हुआ? सैमसंग एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है. क्लियर? तो सारे कस्टमर का मूवमेंट एक सर्टेन पॉइंट्स पे हो गया. पॉइंट इज सैमसंग, पॉइंट इज रेडमी, पॉइंट इज 2-3 मोर नेम्स. दिस इज ऑल कंसोलिडेशन. बाकी सब कंपनी खत्म, माइक्रोमैक्स खत्म, लावा खत्म, ये हुआ कंसोलिडेशन. क्लियर है? फाइन. तो अगर ये कंसोलिडेशन हो रहा है तो फिर जहां पर खरीदने की चीज है वो भी कंसोलिडेट करेगा. अब वो स्कैटर्ड नहीं होगा. ठीक है. क्यों कंसोलिडेशन? क्योंकि कस्टमर का थॉट प्रोसेस ऐसा है कि भाई एक ही जगह पे हमको इसका सारा चीज मिल जाए. कस्टमर प्रेफरेंसेस. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? जबरदस्ती कहा नहीं बोलना. Yes, sir. अच्छा. तो अब इस तरह से कंसोलिडेशन होगा तो फिर है कि लोकल वेयर हाउस भी चाहिए उस पॉइंट पे जो कस्टमाइज सर्विस दे सके इस मार्केट को, एसपी वर्मा रोड को, हरिनिवास को इन पर्टिकुलर. अब उसमें कंसेप्ट आ जाता है की अकाउंट्स का. की अकाउंट्स का हमने आपको प्रोफाइल बताया होगा पहले कि जैसे की अकाउंट्स मैनेजर का क्या है. मान लीजिए अभिमन्यु अनुग्रह नारायण का जॉब हुआ इसमें, लेट्स से कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल में. प्रॉक्टर एंड गैम्बल का पूरा सीरीज है, टाइड है, सर्फ है, सारा चीज है. खैर, तो अब है कि की अकाउंट्स में क्या है कि बिग बाजार है, विशाल मेगा मार्ट है. यही आपको देखना है. चलो मिल गया. फाइन.
रिलैक्स। क्या बोल रहे थे हम? बिग बाजार एंड ऑल, तो वो की अकाउंट्स हो गया प्रॉक्टर गैम्बल का। यहां से ज्यादा टर्नओवर होता है, उसको ख्याल आपको रखना होगा, ठीक है। तो उसी तरह से एसपी वर्मा रोड भी तो सब कंपनीज के लिए की अकाउंट्स हो चुका है, क्योंकि एसपी वर्मा रोड एंड हरिनिवास ये आपका 70% रेवेन्यू जनरेट, 70% टारगेट पूरा होता है सारे कंपनी के लोगों का, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो 70% टारगेट जो है, जो एग्जीक्यूटिव्स है, सबका टारगेट यही से पूरा होता है। तो अब है कि एकदम फास्ट हमको सर्विस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द स्टॉक, विद रिस्पेक्ट टू द स्टॉक। तो वेयर हाउस हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर है कि मेरा कॉस्टिंग भी बढ़ रहा है। आवाज आ रही है मेरी क्लास? रोशन, आरुषि, Yes, मेरी यस सर, आपकी आवाज आ आ रही रही है है सर। ठीक है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि कॉस्टिंग बढ़ रहा है, क्लियर। लेकिन कॉस्टिंग बढ़ने का जो स्पीड है और टर्नओवर का जो स्पीड है वो ज्यादा है ना। इधर एक और किराया हमने दिया और इधर टर्नओवर मेरा बहुत बढ़ गया, क्योंकि हमको पूरा स्टॉक रश करवाना है, क्लियर। तो उसमें एवरेजिंग में हमको प्रॉफिट ज्यादा होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई मल्टीपल वेयर हाउस। एक आपका वेयर हाउस लेट्स से 0 माइल एंड अनदर वेयर हाउस सेंट्रली लोकेटेड विद इन द एरिया ऑफ एसपी वर्मा रोड, ठीक है। तो लाइक दैट, क्लियर हुआ? ये बात क्लियर है? कंसोलिडेशन था पूरा पॉइंट का डिस्कशन, Yes, यस सर। ठीक है। नहीं क्लियर है तो फिर से बोलो अभी के अभी। कंसोलिडेशन को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसोलिडेशन जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है। आप मैच्योर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो पर्टिंग जो बिहेवियर है, बाइंग बिहेवियर, वो शिफ्ट करता है फ्रॉम लोकल टू द ब्रांडेड, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन, क्लियर, फाइन, ठीक है। आगे पढ़िए रागिनी या आरुषि, तुम पढ़ो तो। आरुषि, yes sir, yes sir. ये एक ट्रांसपोर्टेशन सेकंड, कॉस्ट है ना सर? हाँ, कॉस्ट ऑफ कैरियज। Yes sir. To provide transportation service, any carrier, whatever mode, must have certain basic physical elements. These elements are vessels, terminal, and vehicles, which results in a टर्मिनल्स cost एंड to the व्हीकल्स, vehicles. Vehicles, which results in a cost to the carrier, and depending on the mode and the carrier, may be either capital fixed or operating. ये भी पढ़ना सर? वेरिएबल कॉस्ट, हाँ, यस सर। ऑपरेटिंग और Operating वेरिएबल कॉस्ट, variable वर्किंग cost. कैपिटल है। Yes. Fixed costs are costs that do not change with the volume of good carried. The purchase cost of a truck on the by carrier is a fixed cost. No matter how much it is used, the cost of the vehicle does not change. However, many costs of operations such as fuel, maintenance, and drivers' wages depend on the use made of the truck. एक सिंपल एग्जांपल लेके दिया हुआ है कि जो भी कैपिटल गुड्स होगा उसमें फिक्स कॉस्ट लगेगा और बाकी जो वर्किंग कैपिटल है वो वैरी करता रहेगा। सर ये एक कॉमन फिनोमिना है सर। चलिए वेरिएबल कॉस्ट को ये अनुग्रह नारायण आप पढ़िए तो, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एक बात याद रहे, मतलब सभी को बोल रहे हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग इस बात को लिख लीजिए, मतलब ओके फाइन, राइट हिंदी, ठीक है, नोटबुक, बट ऐसा लिखिए कि आपको जिंदगी भर याद रहे, ठीक है। दिस इज एक्चुअली बिजनेस। फिक्स्ड कॉस्ट जो भी है, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। जो रिकरिंग कॉस्ट, रिकरिंग मतलब हर महीने किराया देना, हर महीने बिजली बिल देना, ये सब रिकरिंग है, फाइन। रिकरिंग कम होना चाहिए। रिकरिंग जो भी आपका है नेचर, जो भी कॉस्ट में रिकरिंग है वो कम रहे। तो दैट इज की रेंट एग्रीमेंट जो होता है उसमें एक डिपॉजिट वो मांगते हैं लैंडलॉर्ड, फाइन। तो नेगोशिएशन कैसे होता है बलराम? नेगोशिएशन कैसे होता है? a shopkeeper, he wants a rent, ठीक है, मेरे पास जगह है, तो what he will negotiate with me? I said कि 50,000 per month rent,
एंड लेट्स से कि 300,000 3 लाख रुपया डिपॉजिट, इसमें क्या नेगोशिएशन होगा? व्हाट बलराम विल नेगोशिएट? इन दोनों में रिकरिंग नेचर कौन किसका है? 50,000 पर मंथ, डिपॉजिट तो वन टाइम हो गया, और जो डिपॉजिट रेंट वन पर टाइम है मंथ है सर, और रेकरिंग हो गया कि जो हर मंथ पे करेंगे हर 50,000। मंथ। आप नेगोशिएट किसमें कीजिएगा? तो सर रेकरिंग में करने से ज्यादा फायदा है। अब जो हर मंथ रिकरिंग में जो ज्यादा देने फायदा वाले है। हैं, यस सर, जो 50,000 हर हम्म, मंथ देंगे उसमें ज्यादा मतलब नेगोशिएशन करने में फायदा है। उसमें कमी करवाइएगा। What you will give the proposal that in place of 300,000 you take 400,000 यस सर। in place of, but this 50,000 you please reduce it to let's say कि 35,000 or 30,000। जितना रिकरिंग कॉस्ट है ना वो कम होना चाहिए, क्योंकि सारा प्रॉफिट जो है वो उसी में चला जाता है जो रिकरिंग कॉस्ट को पे करने में। तो रेंट कम होना चाहिए, क्लियर है? तो फिर आपका प्रॉफिट होगा। एक बार आप 4 लाख रुपए ले लीजिए, ओके फाइन, दैट इज ओके विथ मी, बट रिकरिंग कम होना चाहिए तो बिजनेस आपका बेहतर चलेगा। अगर रिकरिंग नेचर का जो भी पैसा लग रहा है वो अगर आपने ज्यादा कर लिया, आप कभी प्रॉफिट में नहीं आइएगा, ठीक है? जितना मेहनत कर लीजिए, दैट इज फॉर श्योर। ये बात याद रहेगी सबको? याद रहेगी? फाइन। Yes. तो उसमें अब है कि नाउ यू ऑल पीपल आर स्टूडेंट, डैड इज गिविंग मनी, ठीक है, योर डैड इज वर्किंग हार्ड एंड योर पीपल आर एंजॉयिंग द मनी। अब उसमें क्या कि जो भी रिकरिंग कॉस्ट है ना उसको कम करो। बात समझ में आ रही है? पेट्रोल डेली भरा रहे हैं तो कम भराओ ना। क्लियर है अमन? अच्छा वो मोटरसाइकिल चोरी हो गया, कंप्लेन नहीं लिखाना, ठीक है? रिकरिंग है उसको कम रखिएगा। क्लियर? डीप क्लियर है? तुमको तो ज्यादा क्लियर होगा, ये बात तो बेहतर समझ में आई होगी, ठीक है ना? चलिए अनुग्रह नारायण आगे बढ़िए। Yes, sir. वेरिएबल कॉस्ट, These are variable costs. The ways are the path over which the carrier operates. There includes the right of the way, landed area being used, plus any roadbed, track, or other physical facility needed on the right of the way. The nature of the way and how it is paid for vary with the mode. They may be owned and operated by government or by carry or provide by nature. Uh, Terminal one. are placed. Terminal are placed where carrier loaded and uploaded, unloaded goods, load and unload goods to and from vehicles, and make connections between local pickup and delivery service and line haul service. Other functions performed at terminals and waiting. Connect connection with administration and paperwork. Oh, sorry, नहीं, sir. connection with other routes. Other routes, and other routes and carriers. Vehicle routine dispatch, machine maintenance, and administration and paperwork. The nature and size and complexity of the terminal varies with the mode and the size of the firm and the types of goods carried. Terminals are Correct. generally owned and operated by the carrier, but in some special circumstances may be published, owned, and operated. Okay, wait. Next. Vehicle of the various types are used in all mode except pipelines. They serve as carrier and power unit to move the goods over the ways. The carrier usually owns and leases the vehicle. All through the sometimes the shippers own and leases them. Beside way terminal and vehicle, a carrier will have other costs such as maintenance, labor, fuel, and administration. These are generally part of operating cost and may be fixed or variable. ठीक है,
इन ऑल दिस पॉइंट्स जो डिस्कशन हो रहा है इसमें, पॉइंट, अब जो भी वेयर हाउस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लेआउट, उसके यूटिलिटी के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट से जैसे इसमें देखिए आपका जितना है कि आपका लोडिंग अनलोडिंग है, डिस्पैचिंग है, सारा चीज है, तो लेआउट शुड बी डिजाइन इन सच अ वे कि ज्यादा आसान हो जाए, क्योंकि वो रिकरिंग नेचर का है, ठीक है। तो क्या हुआ नमन, इस पे कुछ बात बोल सकते हो नमन तुम, मतलब सब समथिंग सिंपल। सेकंड पॉइंट पे टर्मिनल आर प्लेसेस वेयर कैरियर्स लोड एंड अनलोड गुड्स टू एंड फ्रॉम द व्हीकल। तो दैट इज कि पिकअप हो रहा है और लोडिंग हो रहा है, अनलोडिंग हो रहा है। एक व्हीकल आया है जो अनलोड किया है, एक व्हीकल आया है जो उसको लोड करके ले जाएगा, ये रिकरिंग नेचर है, ठीक है। स्टॉक जो स्टॉक हो रहा है, ठीक है, वो एक तरफ फिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा है ना, लोडिंग अनलोडिंग का। फाइन, अमन कुछ बोलिए इस पे, नमन समथिंग। सेकंड पॉइंट So from vehicles and make connections between local pickups and delivery services and line haul services। तीन बातें लिखी हुई है। लाइन हॉल क्या हुआ, लाइन हॉल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वन टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल, ठीक है, उसमें डिस्टेंस के हिसाब से आपका रेट चार्ज होता है। नमन क्लियर हो रहा है? नो सर, लाइन हॉल कॉस्ट क्या है? लाइन हॉल सर सर्विस वेट के हिसाब से सर वो डिस्टेंस के हिसाब से सर फ्रेट चार्ज करना। वेट के हिसाब से कोई बात ही नहीं है लाइन सर हॉल, डिस्टेंस के हिसाब से। क्लियर, फाइन। तो अब इसके हिसाब से अब तीनों को कनेक्शन कीजिए। अब आप कॉस्टिंग कम करना है हमको। यहाँ तो टर्मिनल बढ़ गया है ना, मल्टीपल वेयर हाउसिंग में टर्मिनल तो बढ़ गया, फाइन। तो अब इसमें क्या है कि आप उसको फुल यूटिलाइज करेंगे, फुल यूटिलाइज, तभी कॉस्टिंग कम होगा। ये कंसेप्ट आपका आ रहा है। अदर फंक्शन परफॉर्म एट टर्मिनल्स आर, अब ये सब उसको वेट किया था बहुत सारी चीज को, ये सब रिकरिंग नेचर है, रिकरिंग नेचर। इसको पढ़िए तो फिर से। Ways are second point. So अदर turn- फंक्शंस, अदर फंक्शंस, अच्छा, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। okay, sir. Other functions performed at terminal are waiting connections with other routes and carriers, vehicle routing and dispatch and maintenance. रूटिंग एक मिनट होल्ड कीजिए। फंक्शंस को देखिए आप, वेइंग हो गया, सामान को तोला जाता है टन्स में एंड ऑल, फाइन, वन। फिर कनेक्शन विथ अदर रूट्स, एक वेयर हाउस से सेवरल को जाता है ना, राइट फ्रॉम दैट सबलपुर जियो वेयर हाउस, ठीक है, ऑल द डक्ट पाइप एंड ऑल टू द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग पटना, फाइन। उसके बाद आपका है डिस्पैचिंग है, मेंटेनेंस है, एडिशन पेपर वर्क है, ये सब सारा फंक्शन हो गया आपका। सर ये सब सारा, डिस्पैचिंग एक फंक्शन ये है। सब सिंक्रोनाइज वे में होना चाहिए। क्या फिर से बोला आरुषि? सर डिस्पैचिंग का मतलब क्या होता है? डिस्पैचिंग नहीं पता तुमको? नहीं Oh, it's a very serious problem. Okay. ठीक है, जाते हैं। कोई भी सामान को, स्टॉक जो है उसको लोड कर उस जगह के लिए रवाना करना, समझ में आया? डिस्पैच, आरुषि? यस सर, नो सर, समझ में आ गया। ये Yes, लैपटॉप sir, है, आ गया। ये लैपटॉप है, इसको व्हीकल पे हमने लोड किया और उसको फिर उस मार्केट के लिए रवाना कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिस्पैचिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना बाबू, यस सर। फाइन। चलिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अनुरा पढ़िए। द नेचर एंड साइज, The nature, size, and complexity of the terminal varies with the mode and the size of the firm and the types of good carried. The terminal are generally owned and operated by the carrier, but in some special circumstances may be publicly owned
and operated. ठीक है, तो जितना जो फंक्शन आपका है इसमें सारा फंक्शन आपने देख लिया आपने, ये सबको सिंक्रोनाइज वे में आपको करना होगा, राइट, सो दैट की कॉस्टिंग आपका कम रहे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो कीवर्ड है आपका लाइन हॉल। तो लाइन हॉल का मतलब डिस्टेंस के हिसाब से आप उसमें आधा भरिए या पूरा भरिए, ठीक है, वो पूरा पैसा ले ही लेगा, तो पूरा सिंक्रोनाइज रहेगा, दैट इज की ऑर्डर। नाउ अब ये बात इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी आप मार्केट से ऑर्डर जनरेट करेंगे उसी हिसाब से स्टॉक जाएगा, ठीक है, फाइन। और इसमें बुलविप इफेक्ट भी आ जाता है। बुलविप इफेक्ट क्या हुआ? इन अगेंस्ट द डिमांड ऑफ 10, अगेंस्ट द डिमांड ऑफ 10 सप्लाई 15 होता है, दुकानदार सप्लाई 15 करेगा, फाइन। तो ये सब बहुत बैलेंस होना चाहिए, ये सब बहुत बैलेंस, ठीक है, ताकि मेरा कॉस्टिंग कम रहे, ताकि टर्नओवर सही हो। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? फाइन। मल्टीपल वेयर हाउस पे ये बात क्लियर हो गई ना। एसपी वर्मा रोड हैपेंस टू बी द एंटायर एसपी वर्मा रोड हैपेंस टू बी द की अकाउंट्स फॉर ऑल द कंपनीज, so it's one warehouse should be in SP Verma as well apart from 0 mile. Fine. Okay. चलिए, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट उसको ये इसको रोशन पढ़िए, रोशन आप पढ़िए। Yes, sir. Inventory carrying cost. The average inventory carried depends on the order quantity and safety stock. The average order quantity inventory in the system should remain the same since it depends on demand, the cost of ordering, and the cost of carrying inventory. The cost safety stock will be affected by the number of warehouses in the system. Safety stock is carried to protect against fluctuation in demand during the lead time and the standard. एक मिनट, एक मिनट रुकिए, इसमें साफ लिखा हुआ है फ्लक्चुएशन इन डिमांड। क्लियर है? अच्छा, तो फ्लक्चुएशन इन डिमांड का भी एक्सपीरियंस के हिसाब से हम एवरेजिंग निकाल लेते हैं, एवरेजिंग निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, ये दिसंबर जनवरी फरवरी ठंड का मौसम है, अच्छा, तो अब बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ी है, एवरेज ठंड है, फाइन। तो स्वेटर बिकने का स्पीड और ब्लोअर बिकने का स्पीड नॉर्मल रहेगा। अचानक से ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ठंड हो गई, वो 3-4 दिन बहुत ज्यादा, ये 3-4 दिन बारिश बहुत ज्यादा हो गई, तो ये 3-4 दिन जो बारिश बहुत ज्यादा हो गई, यानी 4 दिन बहुत ज्यादा ठंड पड़ गया जो हुआ था, तो अचानक से डिमांड बहुत बढ़ जाता है कि पूरा स्टॉक खत्म हो जाता है, इतना ज्यादा स्पीड बढ़ जाता है लोगों का चीजों खरीदने के लिए। अब वो यूनिट ऑफ लाइफ हो चुका है, स्पेशली ब्लोअर एंड थंडर मौसम, अक्सर शॉर्टफॉल जाता है, फाइन। तो सेफ्टी स्टॉक आप रखिएगा सो दैट यू विल कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी। ये लॉजिक क्लियर है दीप? फाइन। तो सेफ्टी स्टॉक ये चीज हुआ, सेफ्टी स्टॉक इज कैरिड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन द डिमांड। ठीक है, आगे पढ़िए रोशन, आगे पढ़िए। Yes, sir. In part or the number of units sold in chapter 11, it was shown that the standard deviation varies as the square root of the ratio of forecast the lead time intervals. Similarly, for the same SKU, the standard deviation varies स्टॉक कीपिंग यूनिट, approximately. क्या सर? SKU? स्टॉक कीपिंग यूनिट, Stock keeping unit. The standard deviation varies मतलब approximately. उसी स्टॉक का अलग अलग हो जाता है, Yes, sir. सेम स्टॉक, ठीक है। Standard deviation varies approximately as the square root of the ratio of the different annual demands. Suppose that the average demand is 1000 units and for the service level of 90%, the safety stock is 100 units. If the 1000 units is divided between two distribution centers, each having a demand of 500 units, the safety stock in each is. एक मिनट, सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेशन का देखा जाए हम लोग, फाइन। SS मतलब 1000 is the stock. 1000,
मतलब सेफ्टी स्टॉक कितना रखेंगे सो दैट की फ्लक्चुएशन को हम मीट कर पाए, ठीक है, एक्सेस डिमांड जो होगा। तो नाउ सपोज द एवरेज डिमांड इज 1000 यूनिट, 1000 यूनिट का एवरेज डिमांड है जो आपने डिमांड में कैलकुलेट किया है, ठीक है, एंड सर्विस लेवल इज 90%, द सेफ्टी स्टॉक इज 100, सेफ्टी को 100 यूनिट्स। इफ 1000 यूनिट्स आर डिवाइडेड बिटवीन टू डिस्ट्रीब्यूशंस, अब इसमें जो फॉर्मूला है कि मतलब 100, ठीक है, हैपेंस टू सेफ्टी स्टॉक अंडर रूट 500 बाई 1000, ये फॉर्मूला है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। सर बट एसएस इक्वल एसएस भी तो सेफ्टी स्टॉक हो गया, फिर इक्वल टू में भी फिर 100, तो वो भी सेफ्टी स्टॉक, मतलब इसका और फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे इसको, है, बट एक कंसेप्ट है कि सेफ्टी स्टॉक का जो नंबर है वो हर वेयर हाउस के रखेगा, ठीक है, इसमें के एग्जांपल नहीं है अभी, इसको अलग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बट है कि 71 यूनिट्स ऐसे अभी समझ लेते हैं, तो 71 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक आपको रखना ही पड़ेगा, वो स्टैंड मेंटेन करना है, क्लियर, कैलकुलेशन से आपको उतना यूनिट मेंटेन करना होता है सेफ्टी स्टॉक का। तो फिर विल मिस द अपॉर्चुनिटी एंड ऑल, ठीक है। लास्ट में वेयर हाउसिंग कॉस्ट, ठीक है, इसको पढ़िए, ये पढ़ो जानवी। Yes, sir. The fixed costs associated with distribution centers are space and materials handling. Some materials handling. The Material, space needed depend on the amount of inventory carried. As we have seen, as more distribution centers are added to the system, more inventory has to be carried, which requires more space. In addition, there will be some duplication of non-storage space, such as washrooms and offices. So, as the number of distribution centers increases, there will be a gradual increase in distribution centers' space cost. Operating costs also increase as the number of distribution centers increases. Operating costs depend largely on a number of units handled, since there is no increases in sales, the total amount of unit handled remain the same, as does the cost of handling. However, the non-direct supervision and clerical cost increases. ठीक है, ये एक सिचुएशन है, इसको फिर से विजिट करते हैं हम लोग, एक सेकंड। वेयरहाउस कॉस्ट में क्या है कि वेयरहाउस आपका बढ़ रहा है, हाँ, और टर्नओवर उतना ही है, उसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें हम लोग, ये बात पहले समझ में आई? हेलो क्लास। Yes, sir. In addition, there will be some duplication. Duplication वर्ड आ गया है, वही काम बार बार रिपीट किया जा रहा है हर जगह पर, तो डुप्लीकेशन होगा तो कौन बढ़ जाएगा? डुप्लीकेशन होगा, हाँ बोलो, वही काम उधर भी रिपीट हो रहा है, वही काम उधर भी रिपीट हो रहा है, उसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या रहेगा? डुप्लीकेशन जो काम हो रहा है, ठीक है, नमन अनुग्रह नारायण, उसको अगर सेंट्रलाइज करके एक जगह पे उस काम को करें तो कॉस्टिंग कम हो सकता है। अच्छा, एग्जांपल KFC सेंट्रलाइज किचन, ठीक है, एक यूनिट जो पैसा है जहां सिर्फ आपका कुकिंग हो रहा है और उसके बाद जो भी डिशेस बना उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, तो अब डुप्लीकेशन बंद हो गया ना। हर रेस्टोरेंट में कुकिंग भी हो रहा है, सर्व भी हो रहा है, डुप्लीकेशन हो गया। इसको कॉस्टिंग कम करने के लिए सेंट्रलाइज किचन कर दें, सेंट्रलाइज किचन, और बाकी जगह सर्विंग, डाइनिंग एंड ऑल। क्लियर? फाइन। कुछ और बोलना है नमन? ओके, क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो ना। अच्छा, ये बात करो क्लास, मतलब ऑनलाइन क्लास। डुप्लीकेशन को सेंट्रलाइज करिए, सब जगह डुप्लीकेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। आरुषि आगे पढ़िए, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट।
Yes, sir. Material handling cost depends upon the number of units handled. Since the sales volume remains constant, the number of units handled should also remain constant. There will be little change in material handling costs as long as the firm can ship unit loads to the distribution center. However, if the number of distribution center increases to the point that some non क्या है unit unitized loads. unitized loads are shipped, materials handling costs increases. ठीक है, रोशन इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, क्या बात हुई? हमको कॉस्टिंग को रिड्यूस करना है, मटेरियल हैंडलिंग को। रोशन, Yes, sir. मटेरियल को हमको रिड्यूस करना है, कॉस्टिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इसमें क्या सॉल्यूशन है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब सर कम कर सकते हैं इसमें रॉ मटेरियल का या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, हम उस तरह से नहीं है, ठीक है। इसमें देखो ना, साफ इंडिया हुआ है, द नंबर ऑफ यूनिट्स हैंडल जो कांस्टेंट है, नहीं, देयर विल बी अ लिटिल चेंज इन द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट एज लॉन्ग एज द फर्म कैन शिप यूनिट्स लोड टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अपने वेयर हाउस से आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस में शिफ्ट कर दीजिए, आपका लोड कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई रोशन? यस सर। बट डिस्ट्रीब्यूटर का अपना वेयर हाउस है ना, डिस्ट्रीब्यूटर के सर उतना होना भी तो चाहिए सर, डिमांड उसका कैपेसिटी से अगर ज्यादा मेरे पास स्टॉक है सर मटेरियल, तो कैपेसिटी से हमेशा स्टॉक ज्यादा दिया ही जाता है। तो उसके बाद आप जो सेल्स में रहेंगे, आपका काम है कि उसको सेल्स प्रमोशन लगाइए, जो भी एक्टिविटी कीजिए ताकि टर्नओवर बढ़े, दैट सिंपल। क्योंकि एक्सेस ऑफ स्टॉक तो है ही ऑलरेडी, एक्सेस ऑफ स्टॉक है सर। बट सर मतलब मेरे पास तो स्टॉक ज्यादा है क्योंकि हम स्टॉकिस्ट हैं सर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाले को दे रहे हैं। नहीं, एक तो सर उसके कैपेसिटी के हिसाब से चलते हैं रोशन, वहां से चलते हैं। हम लोग वहां से शुरू करते हैं, कहां से मामला शुरू हो रहा है। फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकते हैं ना हम लोग, ये बात तो क्लियर है? कर सकते हैं क्या? उसका प्रोडक्शन तो चालू रहेगा, ठीक है। तो अब स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा है, स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन हो रहा है इन एक्सेस, का बुलविप इफेक्ट की वजह से हो रहा है, बुलविप इफेक्ट की वजह से हो रहा है। देन डिमांड के अगेंस्ट में 100 मैन्युफैक्चर हो रहा है, 10 के डिमांड के अगेंस्ट में 100 मैन्युफैक्चर होता है। यस सर। अच्छा, और फैक्ट्री नहीं क्लोज हो रही है, तो उधर भी चालू है आपका प्रोडक्शन। तो अब सारा चीज आप लोड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाइएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको बढ़ाना होगा ना, different markets. One point happens to be SP Verma Road, then there will be another SP Verma Road in other districts. Other districts. Yes sir. ब्रेक हो रहा है सर आपका। डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने का टारगेट आपका रहेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बढ़ाने का टारगेट आपका रहेगा, क्लियर। जितना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, सिंपल। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट, पैकेजिंग कॉस्ट। देखिए, सब में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट है। मेरी आरुषि, यस आ रही है। सभी में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट है। जितना प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ये सिंपल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है। तो ये मार्केट के हवाले से जितना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइज करेंगे, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरा कॉस्टिंग कम होगा, टर्नओवर बढ़ जाएगा। क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक है। पैकेजिंग कॉस्ट, एक मिनट, तुम पढ़ो लवली। पैकेजिंग कॉस्ट, per unit packaging cost will remain the same, but since there will be more inventory,
Total packaging cost will rise with inventory. ठीक है, पैकेजिंग कॉस्ट का भी आपका इकोनॉमिक्स स्केल ही है, ठीक है। यूनिट को कॉस्ट कम करने के लिए ज्यादा इन्वेंट्री को पैकेजिंग कीजिए, सारी चीजें टोटल इन्वेंट्री को पढ़िए। Total system cost. We have assumed that total system sales remain the same. Shows graphically how the cost of transportation, warehousing, material handling, inventory, and packaging we have as distribution centers are added to the system. Up to a point, total cost decrease and then start to increase. It is the objective of logistics to determine this least cost point. अच्छा, ठीक है, फिगर 13.11 वेयर इट इज, देखो तो बुक में 13.11 कहाँ पर है, बुक में फिगर 13.11। अच्छा, ठीक है, आई थिंक इट इज द फिगर, ओके। इसको कर लें। ठीक है, सर्विस इसको पढ़िए, टोटल कॉस्ट को अभी एक इस पर के बाद डिस्कस करते हैं हम लोग। फाइन, इसको पढ़िए। System service capability. This service capability of the system must also be evaluated. One way of assessing this is by estimating the percentage of the market served within a given period. As expected, the service level increases as the number of distribution centers increases. It increases rapidly from one to two distribution centers and much less rapidly as the number is further increased. The first distribution center is built to serve the waste market, the next to serve the second waste market, and so on. Let us assume that a study has been made of a system of 1 to 10 distribution centers and the costs are as shown in figure. ओके फाइन, ठीक है, ठीक है। इस एग्जांपल को हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आई थिंक टाइम फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट सिर्फ है लास्ट में डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, कि ओवरऑल कॉस्ट को कम करने के लिए, ओवरऑल कॉस्ट को कम करने के लिए सोर्सिंग आउटसोर्सिंग का बहुत ज्यादा, और पूरा का पूरा डिपार्टमेंट भी आउटसोर्स हो रहा है, ठीक है। तो इस आउटसोर्सिंग, जो कॉस्टिंग पूरा कम करने के लिए आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। इसको पॉइंट को नेक्स्ट क्लास में याद रहेगा, इस पे डिस्कशन करना है। फाइन, ओके फाइन, थैंक यू क्लास, विल डिस्कस अगेन।